آج اس پر بہت ہی روپ آیا تھا۔ کم سن صبا دلہن بنی بیٹھی اس وقت اپنے پاس موجود سب کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سنہرا پن اسے سب میں منفرد بناتا تھا۔ 19 سال کی صبا کی آج اپنی خالہ سارا کے بیٹے فرحان سے شادی تھی۔ فرحان اس کا بچپن کا منگیتر تھا۔ فرحان سے وہ اتنی فرینک نہ بھی صحیح لیکن اپنی خالہ سے بے حد محبت کرتی تھی، اور خالہ کی تو وہ لاڈلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ نے سب کو چھوڑ کر صبا کو اپنی بہو کے طور پر اپنایا تھا، اور آج وہ اسے رخصت کر کے لے کے جا رہی تھی۔ بارات کے استقبال کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، اب بس بارات کا انتظار تھا جو طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اسلم صاحب نے شہر کے سب سے بڑے بینکوٹ میں آج کا فنکشن رکھوایا تھا۔ صبا ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اور بڑی بیٹی نمرا کے گھر چھوڑ کے جانے کے بعد تو ان کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ اس کی آنکھا ایک آنسو ان کے دل پر جا کر گرتا تھا۔ آج انہوں نے اپنی صبا کی شادی میں ہر طرح کے ارمان پورے کیے تھے۔ باپ کی اتنی محبت دیکھ کر صبا کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ عادل بیٹا، کیا بات ہے؟ فکر مند کیوں ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اسلم باہر کسی کام سے آئے تھے کہ عادل کو اپنے والد کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھ بیٹھے۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی حویدہ تھی۔ کچھ نہیں چچا جان، بس آپ چلیں اندر۔ عادل انہیں واپس اندر لے گیا، جبکہ سلیم صاحب پھر سے فرحان کے نمبر پر کال کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عادل کے نمبر پر اسی کی کال آئی تھی، اور جو اس نے کہا تھا اسے سن کر عادل کا تو دماغ معاف ہو چکا تھا۔ سلیم صاحب کو پتہ چلا تو ان کے تو پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ اپنی کہہ کے کال کاٹ چکا تھا۔ سلیم صاحب اور عادل اس نئے مسئلے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اسلم صاحب باہر آ گئے۔ کوئی مسئلہ ہے تو یار مجھے بتاؤ۔ عادل سلیم شہرازی ان کے دل کا بندہ تھا، ان کے بڑے بھائی کا بیٹا، ان کے دکھ سکھ کا ساتھی، ان کا دوست اور ان کی جان تھا۔ کچھ بھی نہیں چھوٹے بابا، بس آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ عادل خود پریشان تھا لیکن اسلم صاحب کو تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں سلیم صاحب گھبرا کر اندر آئے۔ کیا ہوا بابا؟ عادل نے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو سخت فکر مند ہوا۔ وہ بارات نہیں لا رہے۔ سلیم صاحب کی بات پر اسلم صاحب کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائے تھے کہ پاس کھڑے عادل نے انہیں فوراً سنبھالا۔ چھوٹے بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ اسلم صاحب کا ہاتھ اپنے دل کی جانب گیا۔ چھوٹے بابا کچھ نہیں ہوا، پلیز سنبھالے خود کو۔ عادل خود بھی گھبرا گیا۔ اسلم ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، خود کو سنبھالو یار، مجھے تمہاری ضرورت ہے ہر موڑ پر۔ سلیم صاحب رو پڑے۔ اس وقت وہ ہال کے ایک طرف موجود جینٹس سائڈ پر تھے، وہاں پر لوگوں کا رش کم تھا۔ اسلم صاحب کو چیئر پر بٹھاتے انہیں پانی پلایا۔ ہوا کیا؟ کچھ تو پتا چلے۔ ماموں عمران بھی وہاں آن موجود ہوئے، وہ بھی بے انتہا فکر مند ہوئے۔ فرحان کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، ماں سے بول چکا تھا، لیکن ماں نے اس کی نہیں سنی۔ فرحان آج شہر چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کا فون آیا تھا عادل کے نمبر پر، اور معذرت کر لی۔ سلیم صاحب دکھی انداز میں بولے، ان کی معذرت کی ایسی کی تیسی، ہماری بیٹی کا مذاق بنا کے رکھ دیا، شرم نہیں آئی انہیں یہ سب کرتے ہوئے۔ عمران ماموں کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ وقت شور شرابے کا نہیں ہے، سوچ سمجھداری سے کام لینے کا ہے۔ سلیم صاحب نے سب کو ٹھنڈا رکھنا چاہا۔ حد ہی ہے سلیم بھائی، ان کی جرأت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ بہن بیٹی کی عزت کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے، دل کرتا ہے شوٹ کر دوں اس نالائق کو۔ نہیں کرنی تھی شادی تو ہاں کیوں کی؟ پہلے دن ہی نہ کر دیتا۔ دوسروں کی عزت کا تماشا بنا کے ان کو سکون ملتا ہے کیا؟ عمران ماموں کسی صورت بھی چپ ہونے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں رہ رہ کر فرحان کی والدہ پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے جان بوجھ کر سب کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ سبھی پوری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ میری بچی، اسلم صاحب نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، آپ فکر نہ کریں، بس اللہ پر بھروسہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عادل نے اسلم صاحب کو حوصلہ دیا، اور ان کی دکھ بھری نظریں عادل کے اوپر اٹھیں۔ تم کرو گے شادی میری صبا سے؟ اسلم صاحب کی بات پر ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ عادل نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسلم صاحب کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ صبا اس سے 12 سال چھوٹی تھی، وہ کیسے اس سے شادی کر لیتا؟ جبکہ بولو عادل، کیا کرو گے تم شادی میری بیٹی سے؟ اپناؤ گے اسے؟ اسلم صاحب نے اس کا ہاتھ تھامے کہا تو وہ مشکل خود پر ضبط کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چچا جان، آپ میری جان بھی قربان، 1 منٹ کی دیر نہ لگاؤں۔ لیکن عادل ششو پنج میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اسلم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صبا کو میں نے کبھی اس نکاح سے نہیں دیکھا چچا جان، اب جانتے ہیں میرا نکاح نمرا سے ہوا تھا، اور وہ مر گئی ہے، وہ ہم سب کے لیے۔ عادل، تم جانتے ہو 2 سال پہلے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج تک پتہ نہیں چلا وہ کہاں ہے، پھر اسے بھول کیوں نہیں جاتے تم؟ اسلم صاحب نے ضج ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں جتنی صبا عزیز سی نمرا سے وہ اتنی ہی نفرت کرتے تھے۔ وہ عادل کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور آج تک واپس نہیں مڑی تھی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا چچا جان، ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا،
اور نمرا کو میں نے طلاق نہیں دی ابھی تک۔ عادل نے انہیں سنگین مسئلے کی جانب متوجہ کیا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ عادل، نمرا میری سگی بیٹی نہیں تھی۔ برسوں پرانا راز انہوں نے آج کھول دیا۔ کیا مطلب؟ عادل سمیت سب حیران ہوئے۔ نمرا ہمیں کہیں سے ملی تھی۔ میں اور عالیہ ہنی مون کے لیے دوسرے ملک گئے تھے۔ وہاں نمرا کو کوئی ہمارے اپارٹمنٹ کے قریب باغ میں چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے اسے وہاں سے اٹھا لیا۔ اس کے والدین کو کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ ایک دن کی تھی جس سے میں نے اپنا نام دیا تھا۔ اسلم صاحب کی بات پر سلیم صاحب کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ عادل، یہ ماما بھی حل ہوا اور تمہارے چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اب۔ سلیم صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے بابا جان، لیکن آپ جانتے ہیں صبا مجھ سے کتنی چھوٹی ہے۔ اتنا ایج ڈفرنس ہے، بالکل ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے عادل۔ بہت چھوٹی نہیں ہے وہ تم سے، اور کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ لڑکی زیادہ چھوٹی ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ سلیم صاحب یہ بھائی کے ہم خیال ہوئے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ عادل نے ضد ہوتے ہوئے کہا، فیصلہ ہو گیا ہے عادل، صبا سے تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ سلیم صاحب نے قطعی انداز میں کہا تو وہ لب بھیجے انہیں بے بسی سے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اندر خواتین تک بھی بات پہنچ چکی تھی کہ فرحان بارات نہیں لا رہا۔ صبا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی خالہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آگے بڑھ کر اپنے موبائل اٹھاتے اس نے اپنی خالہ سارا کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار دو بار اس نے کئی دفعہ کال ملائی لیکن ہر بار ہی کال جاتی رہی لیکن کسی نے بھی ریسیو نہ کی۔ صبا کے روتے ہوئے ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی حالت میں موبائل تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس پر اس کے بابا جان اور بڑے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ صبا نے کھڑے ہوتے ان کی جانب پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ سلیم صاحب نے صبا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، بیٹا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے بہترین سمجھو، وہ کبھی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے بہت اچھا سوچ رکھا ہوگا، وہ یقیناً بہتر لے کر بہترین دے گا۔ وہ یہ سب کیوں کہہ رہے تھے؟ صبا نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا میں نے اور آپ کے بڑے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے، امید کرتا ہوں آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ کیسا فیصلہ بابا جان؟ کہ آج سے پہلے کبھی انکار کیا؟ صبا نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹا کچھ ہی دیر میں آپ کا نکاح عادل سے ہوگا، امید کرتے ہیں آپ اپنے بابا کا سر نہیں جھکنے دیں گی۔ وٹ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عادل بھائی، لیکن وہ تو آپ ہی کو۔ بیٹا اپنے دماغ سے اس لڑکی کو نکال دو، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولوی صاحب اور عمران ماموں اندر داخل ہوئے۔ صبح اپنے بابا کو انکار کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں سب کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پیر ہی باندھ دیے وہ چاہ کے بھی اب انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ صبا اسلم بنت محمد اسلم شیرازی، آپ کا نکاح عادل سلیم ولد محمد سلیم شیرازی سے 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ صبا کو زہر سے بھی زیادہ زہریلے لگے تھے۔ اس نے اپنے بابا کی طرف ایک نگاہ ڈالی جن کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ صبا کو لگا جیسے اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی۔ قبول ہے، دل پر پتھر رکھے اس نے اس نکاح کو قبول کر لیا۔ مولوی صاحب عمران ماموں اور سلیم صاحب کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ اسلم صاحب نے بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹا آج مجھے تم پر فخر ہے، میری بیٹی میرا مان ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اسے دل سے دعا دیتے باہر نکل گئے۔ صبا چہرہ چھپا کے رو دی، کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوا؟ میرے نصیب میں وہ شخص کیوں آیا جو ادھورا ہے؟ ہاں وہ شخص ادھورا تھا، اس کی منقوہ صبا کی بہن تھی جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور جو اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے، جس کی وہ خود بھی گواہ رہی تھی۔ کیسے اب اس شخص کو اپنے شوہر کے روم میں قبول کرتی؟ اس کی ہچکیاں بن گئیں لیکن اب نکاح ہو چکا تھا۔ باہر سے مبارکباد کا شور اٹھا تو صبا کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام لکھوا چکی تھی جس کو اس نے ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، لیکن وقت نے کیسا چکر چلایا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے باہر لے جا کر عادل کے ہمراہ بٹھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ ڈالا گیا تھا۔ سبھی کو پتہ چل گیا تھا صبا کی بارات نہیں آئی اور اب وہ اپنے کزن عادل کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہونے جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ شادی پر آئے تھے، کھانا کھا کے 2 4 باتیں کر کے اپنے اپنے گھر کی راہ ہو لیے۔ بابا، رخصتی کے وقت صبا اپنے بابا کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہوں نے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے صبا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دعائیں دی اور عادل کے سنگ رخصت کر دیا۔ اللہ کے اس اچانک فیصلے پر تو وہ دنگ ہی رہ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عادل ان کا داماد بنے گا۔ وہ بھی دوسری بات، وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئے۔ عادل کے بستر پر بیٹھی وہ اپنے دل کو بہت زیادہ فکر مند پا رہی تھی۔ اس کے اندر عادل کے لیے ابھی تک کوئی بھی جذبہ بیدار نہیں ہو رہا تھا، صرف ایک بیزاری سی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، عادل اندر نہیں آیا۔ وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے کمر سیدھی کرنے لگی، آنکھیں نیچے اپنی خالہ سارا کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کہاں ہوں گی وہ، مجھ سے تو بات بھی نہیں کر رہی۔ صبا کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ خالہ جانی میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا؟ میں تو خوش تھی اتنا کہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہوں گی، لیکن وہ سسک اٹھی۔ اس لمحے عادل غصے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا،
اس نے غلط نگاہ بھی صبا پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ سیدھا اندر آتا، اپنی کبرڈ کی جانب بڑھ گیا، اپنا ڈریس نکالتا، وہ زور سے کبرڈ کو بند کرتا۔ باتھ روم میں گھسا۔ اف، یہ اس قدر غصے میں کیوں ہے؟ غصہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جیسے میرے ساتھ زبردستی ہوئی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ صبا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ باہر نکلا تو وہ نکرا نکرا سا لگ رہا تھا۔ صبا نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ 30 سال کا خوبرو جوان مرد تھا۔ وہ باروں پرسنالٹی کا مالک تھا۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش، چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ، ماتھے پر 2 بل جو ہمیشہ اس کے ماتھے پر برا جما رہتے، اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے۔ عادل نے آئینے میں اپنے بستر پر بیٹھی صبا کو دیکھا، جس کے دیکھنے پر فوراً گڑبڑا کر اپنی نظریں نیچے جھکا گئی۔ عادل سر جھٹکتا بستر کی جانب بڑھا، اس کا لہنگا ایک طرف کرتے جو کہ پھیلا کر بستر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بستر پر نیند دراز ہوا، اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے ماتھے پر بازو ٹکا لیے۔ صبا تو اس کے انداز و توار ہی دیکھتی رہ گئی۔ اچانک سے اسے اپنی بے عزتی کا احساس جاگا۔ غصے سے اپنا لہنگا سمیٹے وہ بستر سے نیچے اتری، سارا زیور اتار کر ڈریسنگ پر پٹکنے والے انداز میں رکھا۔ اپنے سر سے بھاری بھرکم دوپٹے اتار کے ایک طرف چیئر پر رکھتے وہ شیشے میں اپنا نازک منہ میں وجود دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، دلہا بائی کی خیر نہیں، آج تو چاروں خانے چت ہی ہوں گے، اتنی خوبصورت اور کمسن بیوی ملی ہے دلہے کو، اس کے تو والے نیارے ہو گئے ہیں۔ مختلف جملوں کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو وہ سر جھٹکتی اپنا لہنگا سنبھالے کبرڈ کی جانب بڑھی۔ لیکن وہاں تو اس کا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ پلٹی۔ اس کا سارا سامان تو آج صبح ہی خالہ کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر یہاں وہ سر پکڑ کے وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی مما اور عادل کی مما دونوں ہی حیات نہیں تھیں، ورنہ وہ عادل کی مما سے کوئی سوٹ لے لیتی، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں تو اسے نیند آنے سے رہی۔ اب اپنا کمرہ ہوتا تو وہ آرام سے چینج کر لیتی۔ اب یہاں کس کو بولتی؟ وہ شخص جس نے اندر آتے اس سے کلام تک نہیں کیا۔ اس کو کچھ بھی کہنا صبا کا اپنی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، کب تک بیٹھی رہتی؟ عادل تو شاید سو گیا تھا، ایسا صبا کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتی ہوں، ان کا ہی کوئی ڈریس پہن لیتی ہوں، صبح بابا سے کہوں گی، سارا سامان بھیج دیں گے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کبرڈ کی جانب بڑھی اور وہاں سے بہت سوچ و بچار کے بعد ایک ٹراؤزر اور زپ والی شرٹ نکالتے وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ فریش ہو کے باہر آئی تو ٹراؤزر کو تو اس نے فولڈ کر لیا تھا، لیکن شرٹ بے انتہا کھلی تھی اور زپ بھی کافی نیچے تک آ رہی تھی۔ وی گلے کی شیپ میں اس کی شرٹ اس کے حسین نشیب و فراز کو ابھار رہا تھا۔ اس نے شرٹ کو کھینچ کر درست کیا، ایک نظر سوئے ہوئے عادل پر ڈالی اور اس کے پاس جاتے بستر کے ایک طرف لیٹتے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، جبکہ عادل کی پوزیشن میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ صبا نے دوسری جانب کروٹ لیٹتے اپنی آنکھیں موند لی۔ ابھی اسے آنکھ بند کیے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے میں یکدم اندھیرا چھا گیا۔ صبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور سبھی جانتے تھے کہ وہ اندھیرے سے گھبراتی تھی۔ بے اختیار عادل کی جانب کروٹ لیتے ہوئے اس کا بازو زور سے جکڑ گئی۔ عادل جب مشکل اپنی آنکھیں میچے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک سے اپنے بازو پر دباؤ محسوس کرتے ٹھٹکا اور آنکھیں کھولتے رخ پھیر کے صبا کی جانب دیکھنے لگا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہ سمجھ آیا۔ لائٹ چلی گئی تھی شاید اور یو پی ایس خراب تھا۔ عادل اس شادی کے انتظامات میں اس قدر بزی تھا کہ ایسے یو پی ایس ٹھیک کروانے کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ عادل اٹھنے لگا کہ صبا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کے اس کے اوپر جا گرا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ غصے سے بھڑکا۔ صبا کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں اور فوراً عادل کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اپنے آنسوں کا حلق میں اتارنے لگی۔ ایڈیٹ! عادل غصے سے اٹھتا اسے ڈانٹ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچا کہ صبا کے اونچا اونچا رونے کی آواز پر وہ گھبرا کے واپس اس تک آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ غصہ ضبط کرتے زچ آتے دبا دبا کر چلایا۔ صبا اس کے اپنے پاس آنے کا احساس کرتی فوراً اسے اٹھتی اس کے سینے میں جا سمائی۔ عادل تو اپنا سانس ہی روک گیا۔ تمام وہ جسم و جان سے مکمل ساکت ہوا تھا۔ پہلی بار کوئی کمسن دوشیزہ اس کے اس قدر قریب آئی تھی۔ وہ تو حق تک ہی رہ گیا تھا۔ نمرا اس کی منقوہ رہ چکی تھی۔ وہ نمرا کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن آج تک عادل نے کبھی اس کا ہاتھ بھی نہیں تھاما تھا، کچا کے گلے لگاتا۔ پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ پڑ گیا تھا۔ صبا بے دھڑک بلا جھجک اس کے ساتھ لگی، تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ عادل
ने हलक तर्क करते इसको धीरे से पीछे हटाना चाहा तो वो मजीद इसके सीने से जोर से चिपक गई। आदल दिल की धड़कनों को संभालता अपनी आंखें सख्ती से मींच गया। वो जितना इसे दूर करने की कोशिश कर रहा था वो इतना ही इसके करीब आते जा रही थी और आदल के लिए इतना ही मुश्किलात खड़ी कर रही थी। सबा प्लीज दूर रहो। आदल को अपनी आवाज़ भी शायद खुद सुनाई नहीं दे रही थी। कमसन बीवी के हुस्न के आगे आदल जैसा मजबूत असाब का मालिक शख्स अपने जज्बात पर कंट्रोल खो रहा था। इसके जिस्म की नाज़गी को वो अपने दिल की धड़कनों में खुपता महसूस कर रहा था जो इसे मजीद इसकी तरफ खींच रही थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है। वो इसके सीने में मुंह दिए मम नमाई। अच्छा प्लीज़ दूर होकर बात करो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आदल ने अब की बार खुद पर काबू पाते इसे ज़रा सा पीछे हटाया तो वो कांपते हुए ज़रा सा पीछे हुई लेकिन आदल के बाजू को ना छोड़ा। सबा मैं यहीं हूँ, छोड़ो भी। आदल ने अब की बार घिरकते हुए कहा तो सबा ने हाथ पीछे हटा लिया। आदल ने मोबाइल उठाते इसकी टॉर्च ऑन की तो सबा के हलक में अटकी हुई सांस बहाल हुई। लाइट क्यों चली गई अचानक? सबा ने हवास बहाल करते पूछा। लाइट चली गई है तो चली गई है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आदल ने माथे पर बल डाले कहा। कुछ देर पहले वाली खुमारी का अब कहीं भी नामो निशान तक ना था। आपके घर तो यूपीएस था ना? सबा ने धीमे से पूछा। खराब है। मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते बिना इसकी जानिब देख के जवाब दिया। वो किसी को कॉल करके यूपीएस ठीक करवाने का बोल रहा था। बात करते करते वो रुक पलटता सबा की जानिब मुड़ा के इसी लम्हे लाइट आ गई। इसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। सामने खड़ी लड़की इस वक्त इसके लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। इसको अपनी शर्ट और ट्राउजर में देखते आदल के रहे से औसान भी खता हो रहे थे। इसने अपने दिल की धड़कनों में पहली बार बहुत जलथल महसूस हुई। वो अपने हुलिये से लापरवाह खड़ी अपने आंसू पहुँच रही थी। वो शायद भूल गई थी कि वो किस हुलिये में आदल के सामने खड़ी थी और कोई ड्रेस नहीं मिला पहनने को। आदल ने खुद पर काबू पाते अपनी नज़रों का रुख फेरा था। आदल की बात पर सबा का सांस थमा। झट से खुद को देखा तो अपने सीने पर बाजू बांधे लिए तो एक इसकी शर्ट का गला खुला था, ऊपर से जिप नीचे की तरफ खुली थी। इसको एकदम सबकी का एहसास हुआ और रुख फेरते अपनी शर्ट की जिप को बंद की। इसकी आंखों में फिर से पानी भरने लगा। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ वहाँ बिस्तर पर। आदल की बात पर सबा ने पलट के इसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? वो घबरा के फिर इसकी जानिब देखने लगी। इसे डर लगा कि कहीं वो कमरे से बाहर ना निकल जाए। और लाइट चली गई और दोबारा तो अकेले कमरे तो इसकी जान निकल जानी है। यहीं हूँ, काउच पर सो जाऊंगा। आदल गहरा सांस भरता इसका डर समझते काउच पर लेटा था। आप वहाँ कैसे सोएंगे? आपका कमरा है। अब बिस्तर पर आगे लेट जाएं। इतना बड़ा तो बेड है आपका, हम आराम से दोनों सो सकते हैं। इसकी बात पर आदल ने इसे अजनबी से देखा। वो मासूम थी या मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी? आदल को समझ न आया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वो सहूलत से इनकार कर गया। आपको वहाँ नींद आ जाएगी? सबा को इसके न जाने क्यों फिक्र हो रही थी, पता नहीं। आंखें नीचे वो कुछ देर पहले के लम्हात सोचने लगा जब इख्तियार होती सबा इसके सीने से लगी थी। वो अभी तक इसका लिम्स अपनी धड़कनों में महसूस कर रहा था। बिस्तर पर सोने के आदी हैं आप प्लीज़ आ जाएं बिस्तर पर। अगर मेरे यहाँ होने से मसला है तो मैं काउच पर चली जाती हूँ, सबा ने मुफाहमत भरे अंदाज में कहा। तो आदल ने इसे घूरा। तुम चुप करके सो नहीं सकती? अब आवाज़ ना आए तुम्हारी, वरना मैं साथ वाले रूम में चला जाऊँगा। आदल की धमकी का आरामद साबित हुई। अब दोबारा वो ना बोली। काफ़ी वक्त बीत गया वो जागती रही। इसकी खातर आदल ने लाइट भी ऑफ नहीं की थी, जबकि रोशनी में इसे नींद नहीं आती थी। फिर भी वो सबा के लिए कंप्रोमाइज़ कर गया। क्यों? नहीं समझ पाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदल सिर्फ मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो मेरा है, मुकम्मल मेरा। मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगी। मेरा शोहर है वो इसके निकाह में है। वो कैसे कैसे मेरी ही बहन से निकाह कर गया? वो जानता है कि दो सगी बहनों से एक वक्त में निकाह नहीं हो सकता। फिर कैसे कर लिया इसने निकाह? निम्रा चिल्ला रही थी। इसको जब से पता चला था आदल ने सुबह से निकाह कर लिया, इसके अंदर की हासिल दौलत जाग गई थी। वो जो 2 साल पहले घर छोड़ के भागी थी तो इसकी वजह वो वाहद राजपूत था जिसने इसे एक रात ही इस्तेमाल करके फेंक दिया था। वो वापस नहीं जा सकी थी। वजह इसका नाजायज़ बच्चा था जिसे इसने इस दुनिया में लाया। वो 2 साल से कनीज़ बाई के आस्थाने पर थी जहाँ वो इनके लिए क्लब में रूप बदल के नाचती थी और इनके लिए पैसा कमाने वाली मशीन बनी हुई थी। निम्रा के बच्चे का बहुत लेट पता चला। इसने अबॉर्शन करवाने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर से मना कर दिया। माँ और बच्चे दोनों ही की जान को खतरा था। मजबूरन बाद डिलीवरी तक चली गई। बच्ची कमज़ोर थी। डिलीवरी के बाद इसको निगहदाश्त के लिए इंक्यूबेटर में रखा गया। इसे इस बच्ची से नफरत थी क्योंकि वो नाजायज़ थी। फिर अपने अंदर से ममता को नोच के फेंक सकी। इस बच्ची की खातिर सब कुछ फरामोश किए इसकी देखभाल करने लगी। इसका फिगर वापस पहले जैसा हो गया तो वो क्लब में 1 से 2 बार नाच चुकी थी।
फिर इस तमाम अरसा के दौरान एक पल को भी आदिल से अपनी नज़र नहीं हटाई थी। इस पर 24 घंटे नज़र रखवाई हुई थी। अभी अभी इसके मैनेजर ने इसे कॉल पर आदिल के निकाह की इत्तला दी थी और वो ऑफिस से बाहर हो गई थी। इसे तो कल तक यही पता था कि सबा की शादी फरहान से हो रही थी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। वो सिर्फ मेरा है, निम्रा ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि इसकी 1 साल की नन्ही बच्ची सोए में जाग गई। इस वक्त निम्रा की इसकी आवाज़, इसका रोना सब टैच दिला गया। नाजिया नाजिया, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। जी बीबी जी, इसे मनहूस को यहाँ से ले जाओ, मुझे इसके रोने से गुस्सा आ रहा है, निम्रा ने करक लहजे में कहा। तो नाजिया ने फौरन नन्ही गुड़िया को अपनी गोद में भरा और कमरे से बाहर ले गई। आदिल सलीम शहराजी, तुम सिर्फ निम्रा के हो, तुम्हें बेवफाई करने का हक नहीं दूंगी। वो कतई अंदाज में सोचती कबर्ड की जाने बढ़ी। अब इसने पूरी प्लानिंग के साथ वापस जाने की ठान ली थी, लेकिन वो बेटी को यहीं छोड़कर जाने वाली थी, बल्कि इसका वजूद ही इसने छुपा के रखना था। कनीज बाई को इसने अपनी बेटी सौंप दी थी, इसी ने इसकी परवरिश का जिम्मा लिया था और आने वाले कल में वो इसे डबल वसूल करने का इरादा भी रखती थी। पर निम्रा को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो ममता जो 1 साल पहले जागी थी, अब कहीं मफकूद होकर रह गई थी। इसे अब अपने असल में वापस लौटना था, जो कि आदिल सलीम शराजी की बाहें और इसका कमरा था, जिस पर निम्रा को लगता था आज भी सिर्फ इसका हक है। सुबह आंख खुली तो इसे एक चिट मिली, जिस पर आदिल ने इसके लिए एक पैगाम छोड़ के गया था। तुम्हारे सारे कपड़े कबर्ड में मौजूद हैं, कोई सा भी ड्रेस पहन लेना। बाबा सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तुम इन्हें ज्वाइन कर लेना। मैं नहीं हूँगा, कुछ काम से जा रहा हूँ। तहरीर पढ़ के सबा ने खुल के अंगड़ाई ली थी, जैसे बरसों बाद बहुत अच्छी नींद ली हो। फिर गहरा सांस खारिज करती वो कबर्ड की जानिब बढ़ी। आदिल के कपड़ों के साथ ही दूसरी तरफ इसके लिए बहुत से खूबसूरत ढेर सारे ड्रेसेस थे। ये सब मेरे तो नहीं, मैंने नहीं खरीदे, ये कहाँ से आए? शायद इन्होंने ऑनलाइन मंगवाए हों। वो खुद ही अंदाज़ा लगाते हुए कम काम वाला ड्रेस निकालती बाथरूम का रुख कर गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो सलीम साहब नाश्ते की टेबल पर इसका वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा, वो बहुत अदब से कहते इनके पास एक चेयर पर टिक गई। सब्बा, मैंने नुसरत से कह के नाश्ता बनवाया है, अगर अच्छा ना लगे तो कल अपनी मर्जी का बनवा लेना। सलीम साहब ने इसके सलाम का जवाब देते मोहब्बत से कहा। बड़े बाबा, मुझे बता देते, मैं बना देती। वो शर्मिंदा से बोली। अरे बेटा, तुम नई नवेली दुल्हन और अच्छा लगता है क्या काम करवाते। वो ब्रेड पर जैम लगाते चाय का एक मग उठाती लबों से लगा चुकी थी। हल्की फुल्की बातों के दौरान सब्बा कुछ पल तो भूल गई कि इसे इस वक्त खाला के घर होना चाहिए था। वो अपने बड़े बाबा के साथ भी खुश थी। सुबह बच्चे, मुझे खुशी है कि तुमने हालात के साथ समझौता कर लिया। कुछ वक्त लगेगा, आदिल और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे से इस्तवार होगा। मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहोगे। वो इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते मुस्कुराए थे, जबकि सबा मुस्कुरा भी न सकी। रात को बड़े से बैंक्वेट में वलीमा की तकरीब रखी गई थी। सबा वाइट कलर की मैक्सी में आसमान से उतरी परी लग रही थी, जबकि आदिल एक ब्लैक टेक्सटो में आज अपनी अलग ही जिप दिखा रहा था। सभी ने इनकी जोड़ी की तारीफ की थी। अपने बाबा से मिलती वो बहुत खुश थी, जबकि सलीम साहब ने बहुत बड़ा केक मंगवा के इनसे केक कट करवाया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। केक कट होते हर तरफ शोर उठा। तालियों की गूंज में केक कट करते इस कपल ने एक दूसरे को खिलाया। इस पल इन दोनों की नज़रों का तसादम हुआ कि आदिल की रात के गुजरे लम्हे फिर से याद आने लगे। वो 19 साल की लड़की इसके हवासों पर छाने लगी थी। तभी किसी ने वहां आते इन सबको बुरी तरह चौंकाया था। वो कोई और नहीं, निम्रा थी। इसके सर पर बैंडेज थी, जबकि इसके चेहरे पर इंतहा की मासूमियत और मजलूमियत थी। इसके साथ एक औरत भी थी। आप में से आदिल कौन है? इस औरत ने, जिसने निम्रा का हाथ थामा हुआ था। इसकी पुकार पर हाल में सन्नाटा छा गया। आदिल लब भींचे निम्रा को देखता स्टेज से नीचे उतरने लगा। इस पर सबा का दिल धक से रह गया। जी मैं हूँ आदिल, बोले। आदिल के ठहरे हुए लहजे पर निम्रा ने इसे गौर से देखा, आंखों में आंसू भर लाए। मिस्टर आदिल, ये शायद आपकी बीवी हैं। ये हमें मिली थी 2 साल पहले। इनका हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। इनका बहुत इलाज करवाया, इनको आराम तो आ गया, लेकिन इनकी याददाश्त खो गई और आज 2 साल बाद इनके सर पर फिर से चोट लगी और इनकी याददाश्त लौट आई। इन्होंने आपके घर ले आई हूँ, पर वहाँ से मुझे इनकी शादी हाल का ड्रेस मिला तो सोचा आपकी अमानत आपको वापस लौटा दूँ। वो लड़की जिसे रटाया सबक सुना रही थी, पूरे हाल में मौजूद लोगों ने इसकी बात मुकम्मल होने तक सुनी थी। आदिल की गंभीर खामोशी पर सभी की नजरें टिकी। सबको जानता था कि अब आगे क्या होगा। कौन निम्रा? मैं किसी निम्रा को नहीं जानता, बराए मेहरबानी यहाँ से जाएं। वो सपाट अंदाज में बोलता निम्रा को अंदर ही अंदर जलने तवे पर बिठा गया। आदिल, इसने वहीं स्टेज की जानिब कदम बढ़ाए कि निम्रा ने तड़प के इसे पुकारा। वो ठटका था, लेकिन रुक ना पलटा। कुछ क्या मुझसे खफा हो, नाराज हो? मैं तो तुम्हारी मनकुआ हूं ना, तुम्हारे निकाह में हूँ। बाबा जान अचानक से नजर असलम साहब पर जा ठहरी। वो भागती हुई इनके सीने से लगी। बाबा जान, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने जामों और जिद में घर छोड़ के चली गई, लेकिन अल्लाह ने मुझे सख्त सजा दी। मेरी याददाश्त ही चली गई और मैं इतना अरसा आप सबसे दूर रही। वो बिलक बिलक के रो दी। असलम साहब के पास इसे दिलासा देने को भी कुछ ना बचा था अब।
शिराजी हाउस इस वक्त मुकम्मल खामोशी की जिद में था। निम्रा की अचानक वापसी पर सभी खामोश थे। आदल सीने पर बाजू बांधे दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, जैसे इसका इस सारे मामले से कोई लेना देना ही ना हो। असलम साहब भी इस वक्त भाई के घर ही थे। कोई ना कोई फैसला लेना था ताकि सबकी जिंदगी पुरसुकून हो सके। निम्रा ने गलत वक्त पर एंट्री दी थी। इसका आना किसी को अच्छा नहीं लगा। वो सच कह रही थी या झूठ कोई नहीं जानता था, लेकिन असल फैसला तो आदल ने करना था, जो बिल्कुल खामोश था। आदल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह चुप क्यों हो? सलीम साहब ने बेटे को बिल्कुल चुप देखकर इसे बोलने पर उकसाया। बाबा, फैसला 2 साल पहले हो चुका था, अब कोई फैसला नहीं होगा। वो दीवार के साथ टेक छोड़ गया। ऊपर रेलिंग पर अपने हाथों की मुठ्ठियां जमाए खड़ी सबा खुद पर जब्त किए नीचे का मंजर देख रही थी। कुछ समझे नहीं। सलीम साहब की बात पर आदल ने बाप को जख्मी नजरों से देखा। मेरे लिए ये लड़की एक एग्जिट नहीं करती। आपने जो फैसला करना है आप कर लें, आई डोंट केयर। वो सर झटकता वहां से ऊपर सीढ़ियों की जाने बढ़ा। रुक जाओ आदल। निम्रा की पुकार पर फिर से इसके कदम थमे। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं कितने बड़े हादसे का शिकार हुई। फिर भी तुम मेरे लिए इतने सख्त अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? निम्रा ने इसका बाजू थामा, जिसे आदल ने इस पल जोर से झटका था, और सख्त अंदाज में वापस मुड़ा। दूर रह के बात करो, खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। वो इतनी सख्त लहजे में घर आया कि निम्रा सहम के 2 कदम पीछे हट गई। ऊपर खड़ी सबा को देखते इसके अंदर एक आग का लाओ दहका। तुम्हें अब मैं बुरी ही लगूंगी आदल, क्योंकि तुमने एक नए जवान हुस्न का जायका चख लिया। अब तुम्हें मुझ में क्या कशिश नजर आएगी? अब तो तुम्हें सामने खड़ी वो लड़की ही अपने साथ। वो अपनी गंदी बकवास बंद करो तुम। आदल फिर से गुस्से से धड़ा। दोबारा मेरे मुंह ना लगना तुम। उंगली उठाते वार्न किया। तुम मेरी जगह मेरी बहन को कैसे दे सकते हो आदल, जबकि मैं तुम्हारे निकाह में हूँ? तुम सबा से निकाह कैसे कर सकते हो? ये निकाह जायज़ नहीं। तुम्हें सबा को छोड़ना होगा। निम्रा अपने ही कहे जा रही थी। ओ अच्छा, तो ये वक्त में 2 बहनों से निकाह नहीं होता तो तुम्हें यहाँ किसने कहा आने को? 2 साल से तुम गायब थी, बिना किसी को कुछ बताए। कहीं तो गायब हुई थी। निकाह तो खत्म हो गया। निकाह सलामत ही नहीं हमारे बीच। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम मेरे निकाह में हो, तो ये गलतफहमी दूर कर लो। सबा से निकाह से पहले तुम्हारे तलाक के पेपर्स पर मैंने साइन कर दिए थे। अब 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। आदल की बात पर निम्रा का रंग फक हुआ। इसे यकीन आया कि आदल इसे ऐसे तलाक दे देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन को तुम मेरी जगह नहीं दे सकते। वो जज्बाती अंदाज में चिल्लाते आदल की गिरबान तक पहुंची। आदल ने इसके हाथ अपने कालर से झटके। अपनी लिमिट में रहो। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालूं। आदल की सख्त अल्फाज पर निम्रा की आंखें आंसू से तर हो गईं। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना कि मैं 2 साल से घर से गायब रही, वरना तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? फिर वो मोहब्बत क्या हुई आदल? वो तड़पते हुए पूछ रही थी। बाहर में गई मोहब्बत मेरे लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। इतना कहते आदल वापस पलटा। क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? एक आखिरी हरबा आंसुओं समेत अपनाया। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। वो इतना कहते सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता चला गया, जबकि निम्रा वहीं फूट फूट कर रो दी। घर चला निम्रा। असलम साहब ने आकर दिल बड़ा करते निम्रा से कहा। वो जानते थे अब यहाँ से निकल के वो कहाँ जाएगी। इसका कोई दर ठिकाना नहीं। मजबूरन इन्हें दिल ही बड़ा करना पड़ा। नहीं, मैं आदल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करता है, बस गुस्सा है। जब गुस्सा उतर जाएगा खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा, और वो मुझे अपना भी लेगा। आपको पता है बाबा, इंसान गुस्सा इसी से करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। आदल ने गुस्सा करके अपना हक जताया। तो मेरा फर्ज है कि मैं यहीं रहूं। निम्रा की अजीब मंतक पर इन्होंने इसे हैरानगी से देखा। लगता है चोट ने दिमाग पर भी असर छोड़ा है। असलम साहब बड़बड़ाए। जब तलाक के पेपर्स पर साइन हो गए थे, अब वो किस हक हैसियत से यहाँ रहती? असलम साहब ने सलीम साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा, तो इन्होंने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। सबा तनफ्फुर से इसे देखती आदल के कमरे की जानिब बढ़ गई। निम्रा के दिल के अंदर फिर से आग दहकने लगी। सबा अंदर आई तो आदल गैलरी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। सबा को न जाने क्यों सब बुरा लग रहा था। आदल क्यों सिगरेट पी रहा था? क्या निम्रा अभी से वो इस कदर मोहब्बत करते हैं कि इनकी याद में सिगरेट पी रहे हैं? सबा के दिमाग ने ताने बाने बनने शुरू किए। पलट के एक नज़र गैलरी में खड़े आदल पर डाली, जो बहुत खामोशी से तारों भरे आसमान को देख रहा था। सबा ने खुद पर काफी देर जब्त किया रखा, फिर उठती हुई गैलरी की जानिब आते एक लम्हे में आदल के हाथ से सिगरेट लेके दूर उछाली। आदल ने चौंके इस कमसिन हसीना को देखा, जो कितने हक से इससे सिगरेट खींच चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो इस टेंशन का हल सोचें, ना कि सिगरेट पी पी के रात गुजारे। वो सख्त लहजे में अपनी बात कहती पलटी थी कि आदल ने इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपने करीब किया। क्या चाहती हो तुम? क्यों करीब आती हो बार बार? मेरे जज्बात भड़काने, आग लगाने आ जाती हो। दूर हो मुझसे मिसिस सबा आदल, वरना मेरी आग की लपेटें तुम तक पहुंची तो तुम्हारी ये नन्ही सी जान सहन नहीं कर पाएगी। जान से जाओगी। वो इस पर अपनी सांसों की तपिश छोड़ता गमगीन लहजे में बोलते एक झटके से इसे छोड़ा, इसे सिगरेट सुलगाने लगा और अब लंबे लंबे कश लेने लगा। सबा ने इसे सिगरेट लेते लेते अपने मुंह की तरफ ले जाना चाहा कि आदल एकदम चौंकते हुए इसकी इस हरकत पर गुस्सा होते इसे सिगरेट खींची। ये क्या बदतमीजी है? होश में तो हो तुम?
आदल के माथे पर बल पड़े। क्यों आप पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकती? भूमि उचका कर पूछती वो आदल के तब चढ़ा रही थी। अच्छा ये लो फिर। आदल ने सिगरेट इसे थमा दी। सबा एक पल इस सिगरेट को देखती, फिर आदल को देखने लगी और झट से सिगरेट मुंह को लगाते सांस अंदर की जानिब खींचा। पर इसी वक्त सबा को शदीद खांसी शुरू हो गई। इसे सांस लेना दोबर हो गया। आदल की सजाइया नजरें इस पर टिकी थी। इसकी कमर में हाथ डाले वो इसे अपनी सांसों से भी करीब तर कर गया। इसकी सांसों का तालमेल जब सबा को अपने लबों पर महसूस हुआ तो इसकी लाल आंखों ने पल में आदल के चेहरे का तवाफ किया, जो बिना पलक झपके इसे देखता अपनी सांसें बख्श रहा था। सबा अपने लबों पर इसके होंठों का लिम्स पाते जी जान से कांपी थी। कौन सी खांसी, कहाँ की खांसी, वो सब भूल गई थी। याद था तो मुकाबल का नरम गरम लिम्स, जो सबा के नॉर्मल होते ही एकदम से शिद्दत अख्तियार करने लगा। सबा ने इसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबाते इस शिद्दत को वो मुश्किल सहा था, जबकि नीचे से सहन में से गुजरती निम्रा ने यह मंजर देखते अपने अंदर बहाम्बर चलते महसूस किए। वो दोनों इतनी जल्दी एक रात में कैसे एक दूसरे के करीब आ गए। निम्रा के तो पैरों लगी सर बुझी। कितनी बेशंट किस कर रहा है। आदल इसे यह भी नहीं ध्यान दिया कि वो इस वक्त रूम में नहीं गैलरी में खड़े हैं। सबकी नजरें ना सही घर वालों की नज़र इस पर ठहर सकती थी, पर वो अपनी पसंदीदा किस लेता जरा सा पीछे हटा। सबा ने एक गहरा सांस भरते इसके सीने पर सर टकाया। आदल के चेहरे को धीमी मुस्कान छुआ। इस तपते सहरा को ठंडा करना सबा के हाथ में ही था। इसके गिद्ध बेख्तियार अपनी बाहों का इशार बनाते वो आंखें मूंद गया। निम्रा गुस्से से वॉकआउट कर गई और वो कुछ बड़ा प्लान करके इन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी ऊपर वाला जब इस मोड़ पर साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबा ने अपना ड्रेस चेंज करते बिस्तर की जानिब कदम बढ़ाए। इसे बादल से डर लगने लगा था, जिस तरह वो इसके लबों से चिपका था। इसे डर था कहीं वो पूरा का पूरा ना चिपक जाए, और आज तो वो बिस्तर पर ही लेटा था। सबा ने अपने कदम काउच पर जाने बढ़ाए। बिस्तर पर आओ सबा। बिना इसकी जानिब निगाह किए इसने इसे पुकारा था। सबा एकदम घबरा के उछली। नहीं, वो मैं काउच पर ही। एक बार की कही बात समझ नहीं आती। यहाँ आओ बिस्तर पर। अब की बार वो गुस्से से बोला तो सबा ने उंगलियां मरोड़ते बिस्तर का रुख किया और एक तरफ होती बेड पर टिक गई। सो जाओ, माथे पर बाजू जमाए धीरे से कहा तो वो झट से लेट गई। लेकिन हर 2 मिनट बाद पलट के वो आदल की तरफ देखती। क्या वाकई वो सो रहा है? सबा, अगर तुम 2 मिनट में ना सोई तो वो मेरा रूप देखोगी, फिर मुझे से पनाह मांगोगी। गंभीर लहजे में कहते हुए उसे डरा गया। लाइट ऑफ करते वो साइड लैंप को जला गया। सबा ने सहम के इसे देखा। आदल ने भी इसकी जानिब करवट ली थी। सो जाओ सबा, मेरे साथ अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करो यार, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। वो धीमे लहजे में सरगोशी कर रहा था। इसकी बात सबा को बहुत बुरी लगी। 19 साल की थी तो वो क्या चाहता था 50 साल की होती वो। नहीं सबा, वो निम्रा आपी की एज वाली से शादी करना चाहते थे। 25 साल की हैं शायद वो। हाँ, मैं छोटी तो नहीं, लेकिन इनसे काफ़ी छोटी हूँ। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी, लेकिन आंखें बंद करना ना भूली। आदल के लबों ने एक मुस्कान को छुआ और इसने भी अपनी आंखें मींच लीं। आज इसकी बेकरार दिल को कुछ करार आ गया था, जो सबा के लबों ने कमाल किया था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दोनों की आंख लग गई। दरवाज़ा जोर जोर से बजा जाने लगा। आदल को फौरन आंख खुली। इसने सबा को अपने बाजू पर सर रख के सोए देखकर जरा सा इसका सर पीछे उठाते तकिए पर रखा और फौरन उठ के दरवाज़ा खोला। इसका दिमाग अभी नींद में ही था। दरवाज़ा खोलते सामने निम्रा थी, जो सीधा इसके सीने से आ टकराई। आदल, आदल, मुझे डर लग रहा है। वहाँ कमरे में कोई है। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली थी, जबकि इसका बरहना लिबास देखता आदल लब भींचे इसे खुद से परे झटक गया, जैसे कोई अछूत हो। आदल, निम्रा बहुत मुश्किल खुद को संभालते हैरत से इसे देखने लगी। क्या आदल? आदल, क्या उल्लू का पट्टा है जो तुम्हारे इन ओछट कंधों में आ जाएगा? अपने औकात में रहो, बल्कि अपने घर चली जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल काम है। आदल इसे हकारत से देखते बोले जा रहा था। इतने में सबा की आंख खुल गई। दरवाजे में इस्तादा आदल को देखती वो इस तक आई। तुम सिर्फ मेरे हो आदल, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। निम्रा बेख्तियार होती आदल के लबों को चूम गई। इसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि आदल इसे अभी वैसी डीप किस करे जैसी इसने सबा को की थी। इसकी इस हरकत पर आदल का पारा सख्त हाई हुआ। झटके से इसे पीछे किया। अभी वो कुछ कहता कि सबा को अपने पास खड़ा देखकर वो चौंका, जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। आदल को इसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से तर बिल्कुल अच्छी ना लगी। वो निम्रा को फरामोश किए सबा की जानिब पलटा। सबा, अंदर चलो। वो इसका जारहाना अंदाज देखता इसे बोलने लगा, जबकि इतनी देर में वो निम्रा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ चुकी थी। निम्रा ने गाल पर हाथ रखे हैरत से अपनी छोटी लड़की को देखा। शर्म नहीं आती आपको? क्यों आई हैं यहाँ? सबा गुस्से से चिल्लाई। ये मेरी जगह है सबा, तुम आई हो बीच में। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अपनी बहन के शोहर पर डाका डालते निम्रा भी दुबदू हुई। शोहर? सबा ने तंजिया अंदाज अपनाया। आदल आपको तलाक दे चुके हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से आप इज्जत के साथ चली जाएं। सबा का अंदाज ही निराला था, जिसे देखकर आदल भी अशश कर उठा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सबा, जाना तुम्हें पड़ेगा। आदल कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, समझी तुम? निम्रा गुस्से से फंकारी।
सबा ने इसे जवाब देने के बजाय पलट के आदिल को देखा, जो इसे ही जा रहा था। सबा ने आगे बढ़ के इसके होंठों को अपने लबों की गिरफ्त में लिया और इन पर अपना गुस्सा दिखाने लगी। इसकी इतनी जुर्रत पर निम्रा ने गंग होते इसे देखा, जबकि आदिल को तो अपना दिल पसलियों तोड़ बाहर आता महसूस हुआ। वो इस कदर गुस्से से इसके लबों पर शिद्दत ढा रही थी, अपने दांतों से 2 बार काट भी गई। आदिल ने एक बार भी इससे परे नहीं झटका और ये बात निम्रा को सुलगा गई। आदिल ने आंखें नीचे इसकी शिद्दत सहता एक बार भी पलट के इसकी कार्रवाई में साथ नहीं दिया था। जानता था इसकी शिद्दत पर वो सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी। यही तो आदिल अब नहीं चाहता था। इसके जवान जज्बे मुंह जोर हो रहे थे और इनमें सबा की हरकत ने जल्दी पर तेल का काम किया। अगर इसने इसका साथ नहीं दिया था तो रोका भी नहीं था। निम्रा वहीं खड़ी रह गई, जबकि सबा आदिल के होंठों के साथ चिपकी दरवाजे को इसके मुंह पर जोर से बंद करती जा चुकी थी। निम्रा जले पैर की बिल्ली की तरह वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अंदर आते ही सबा ने अपनी ग्रीफ से आदिल को आजाद करना चाहा, लेकिन अब आदिल का इरादा बदल गया था। इसने हाथ इसकी कमर में डाले से अपने सीने में सख्ती से भींचा। क्या हरकत थी ये? अपने नरम होंठों की तरफ इशारा करते पूछा, जिन पर वो बाइट भी कर चुकी थी। छोड़े मुझे, आपको शर्म नहीं आती? इसने आपके होंठों को चूमा और आप चुपचाप खड़े थे। बहुत तलब हो रही है आपको तो। आपकी बीवी मैं हूं यहाँ। अपनी तलब मिटा ले मुझसे, लेकिन किसी गैर औरत की तरफ आंख उठा के भी देखा तो जान से मार दूंगी आपको। सबा गुस्से से इसके गिरेबान तक पहुंच गई। आदिल बिना पलक झपके इसके अल्फाज सुनता सख्त हैरत में डूबा। वो इसे ऑफर दे रही थी, आदिल सलीम शेराजी को। इसे लगा था कि वो नफ्स का कमजोर इंसान है जो किसी के साथ भी। आदिल ने मुश्किल अपने अंदर उठते इश्तार को कंट्रोल किया और बहुत ही आराम से अपना कॉलर सबा के हाथ से छुड़वाया। इसने अगले पल फिर थाम लिया। दोनों की नजरों का तबादला हुआ। एक की आंखों में आंसू और दुख था, जबकि दूसरे की आंखों में वार्निंग। आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते आदिल, मेरा हक है आप पर। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती बोली, यह हक जताना तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है सबा। गमगीन लहजे में कहता वो सबा का दिल धड़का गया। सबा की पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ी। आदिल ने इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते अपने गले के गिर्द हमायल किया, जबकि अपने हाथों को इसकी नाजुक कमर पर रखता वो इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता अपने चेहरे के मुकाबले लाया। सबा का तो सारा खून चेहरे पर आन समाया। मेरी तलब पूरी करने की ताकत है तुम्हें? वो इसकी नाक के साथ नाक रब करता आंखों में खुमारी लिए पूछता। इसकी बोलती बंद करवा गया। वो तो जज्बात में आकर डायलॉग बाजी कर रही थी, लेकिन आदिल तो वाकई जज्बात में आ गया। इसका अंदाज देखते सबा को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। इसने पीछे होना चाहा, लेकिन आदिल की गिरफ्त से खुद को छुड़ा ना पाई। आदिल ने इसे कमर से थामे खींच कर अपने सीने से लगाया। इसकी धड़कनों का शोर अपने सीने में धड़कना महसूस कर रहा था। बहुत शोर मचा रही थी ये धड़कनें। क्यों ना इनका शोर बहुत करीब से सुना जाए। वो एकदम इसे अपनी बाहों में भरे बिस्तर पर लाया। इसका बदलता अंदाज सबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। वो चाह के भी आदिल को पीछे ना हटा सकी, क्योंकि इसे उकसाने वाली वही थी। आदिल इस पर घटा बन के छाता इसे हल्की हल्की फुल्की मजामत की भी खातर में ना लाता। इस पर छाता चला गया। रात पल पल गुजरती जा रही थी। आदिल ने सबा की ख्वाहिश पर पूरे शिद्दत से अपना हक वसूल किया था। अपने होंठों से वो इसकी सिसकियों का गला घोंटते इसमें गुम होता इसे खुद भी गुम कर चुका था। आखिर मसला क्या है? क्यों फोन कर रही हो मुझे बार बार? एक बच्ची नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से? निम्रा गुस्से से बेचोताब खाती बोली। दरवाजे के पास से गुजरते सलीम साहब ने इसकी बात सुन ली। वो फजर की नमाज अदा करके वाक के लिए निकल गए थे। अब लौटे तो निम्रा की बात सुनते बुरी तरह चौंके। बच्ची? कौन सी बच्ची? वह हैरान हुए। अगर बुखार है तो डॉक्टर पर ले जाओ। मुझे क्यों फोन कर ये तंग कर रही हो? आगे से कुछ कहा गया? जिस पर निम्रा जिद जाई। माँ हूँ इसकी, जानती हूँ, लेकिन मुझे इस वजूद से नफरत है। नाजायज़ बाप की औलाद है वो। इसके इन अल्फाज पर सलीम साहब का जिस्म अल्लाह के खौफ से कांपा था। मरती है तो मर जाए, जान छूटेगी मेरी इस गन से। निम्रा ने गुस्से से कहते काल काट दी। अपने पीछे सलीम साहब को खड़ा देखकर वो बुरी तरह ठिठकी। तुम इस कदर गिर जाओगी निम्रा, मुझे अंदाजा नहीं था। तुमने रात के अंधेरे में एक शख्स के साथ भाग के अपना मुंह काला किया और फिर एक बच्ची को जन्म दे के इसे गुनाह कह रही हो, गंद कह रही हो तुम। तुम्हें अगर असलम उठा के ना लाया होता किसी गंद के ढेर से तो आज शायद तुम भी खानदानी होती। पर कहते हैं ना, माल माल पर ही जाता है। तुम खुद ना जायज थी। कोई तुम्हें पैदा करते ही फेंक गया और तुमने भी अपनी परवरिश की आग में झोंक के अपने अमल को ऐसे दोहराया जैसे तारीख दोहराती है। तुम पर सिर्फ अफसोस होता है निम्रा, सद अफसोस। सलीम साहब ने इसकी तरफ हकारत से देखा। अंकल मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो सुना वो सच नहीं। वो बच्ची मेरी नहीं। निम्रा फिर से झूठ बोलने लगी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोलूं। आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। वो गुस्से से दहाड़ते खुले दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। निम्रा अपने बाल नोचती वहीं डह सी गई। सब कुछ इसके हाथ से रेत की मानित फिसल गया था। अब सवाए पछताओं के कुछ ना बचा। कसमस आते सबा ने आंख खोली तो अपने बहुत ही करीब सोए आदिल को एक भरपूर निगाह से देखा। इसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ।
आगे की तरफ होते हुए इसके गाल पर अपने लब रख गई और ये सब बेख्तियार में हुआ था। सबा को खुद भी पता नहीं चला था। नमक उदास लबों का लिम्स पाते ही आदल की आंखें पलक झपकते खुली। सबा के चेहरे से मुस्कान पल भर में उड़न छुई। इससे पहले कि वो उठ के भागती, आदल ने इसे कमर से पकड़ के अपनी धड़कनों से भी ज्यादा करीब किया। नजर इसके जिस्म के नशेबो फराज पर थी। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो इसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाता गंभीर लहजे में बोला। वो मुझे बाथरूम जाना है। सबा ने कोई राह फरार ना पाते ममनमाते हुए कहा। मुझे भी चलो, एक साथ शावर लेते हैं। वो शर्टलेस था। इसका सख्त चट्टानी सीना देखते सबा ने फौरन गंभीर नजरें झुका ली। क्या हुआ? इतनी खूबसूरत रात के बाद मेरी जिन जान शर्मा क्यों रही है? अब तो शर्म के पर्दे उतार फेंकने चाहिए। वो मुंह चुकाते शरारत से कहा। मैं बेशर्म नहीं, शर्ट पहने, सबा ने खफगी से कहा। तो आदल ने इसे खींचकर अपनी गोद में उठाया। मेरी शर्ट मेरी जिन जान के जिस्म पर है, अब इसे उतारी तो एक अलग ही सीन देखने को मिलेगा जो अभी मेरी जिन जान अफोर्ड नहीं कर सकती। आदल ने इसके गाल पर हल्की सी बाइट करते मोहब्बत से चूल लहजे में कहा। आप मुझे बाइट्स क्यों कर रहे हैं? इतने शार्प टीथ हैं आपके। वो खुकी से बोली। तुमसे क्यों कम है यार? कल जो तुमने मेरे होंठों पर जख्म दिया वो होंठों से सीधा दिल पर जा लगा। गंभीर लहजे में कहता हुआ इसके लब के साथ अपने होंठ में करने लगा। आप कितने जुनूनी हैं आदल। सबा ने शर्मा के इसके सीने में मुंह छुपाया। अपनी सिर्फ एक रात गुजरी है और तुम मुझे जुनूनी का खिताब दे रही हो। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें इस जुनून को सहना होगा और इससे पहले हम शावर लेंगे एक साथ। वो इसे अपनी बाहों में भर गया। इसकी सिर्फ एक शर्ट में वो खिलता गुलाब बनी इसके सीने में खुद को छुपा गई। बाहर टब में पानी फुल भरा हुआ देखकर इसके अंदर गुलाब की पत्तियों को देखती सबा पूरी जान से कांपी। इसे आदल का इरादा ठीक नहीं लगा था। रात भर वो अपने जुनून से इसे जान हल्कान किए हुए था और अब फिर से सबा को अपनी जान जाती महसूस हुई। आदल इसलिए सीधा बार टब में उतरा। ये सब क्या है? सबा हैरान हुई। जब तुम सोई हुई थी बार टब से टेक लगाए वो खुद को हर पर्दे से आजाद करते सबा को अपने करीब तक करता इसके लबों को फोकस करने लगा। आप कब जागे? बस जिसका सवाल है। मैं सोया ही कब था क्या जागता? वो इसके नाक के साथ नाक जोड़ता इसकी खिलौती शर्ट भी इसके तन से जुदा कर गया। आपने कहा हम शावर लेने आए हैं और अब आप? सबा शर्मा के इसके सीने में छुपे जा रही थी। हाँ लेंगे ना शावर बार टब रोमांस के बाद। अपनी कहते हुए इसके लबों पर शिद्दत से झुकता इसको मजीद कुछ भी कहने का मौका दिया बना इसको अपनी दिलचस्प में ले गया। वो इस बार वाकई जुनून दिखाता सबा की जान निकाल रहा था। प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दे, मुझे यहाँ से मत निकाले। मैं कहाँ जाऊँगी? वो रोते हुए बोली। जहाँ 2 साल से रह रही थी वहीं चली जाओ। तुम जैसे गन से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। असलम साहब के अल्फाज की बहादगी इसके चारों तरफ हो रही थी। वो बेध्यानी में चलती रोड पर आ गई थी कि अचानक एक गाड़ी ने इसे बहुत जोर की टक्कर मारी और वो उछलती हुई दूर जा गिरी। इसके सर और माथे से खून निकला। इसने आखिरी 2 हिचकियाँ ली। गंद का ढेर, यही अल्फाज थे इसके लबों पर अपने लिए और फिर इसकी आंखें बंद होती चली गईं। बाबा आपने इसे चचा जान के घर भेजना था। आदल फिक्रमंदी से बोला। वहीं भेजा था लेकिन तुम्हारे चचा ने भी इसे घर से निकाल दिया। वो इस काबिल नहीं थी बेटा कि इसके साथ कोई भी ताल्लुक रखा जाए। मैं नहीं चाहता था तुम दोनों की हंसी बसी दुनिया को इसकी गंदी नजर लगे। वो मुंह फेर के बोले। बाबा आपको अपने अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। आदल तुम इसकी तरफदारी ना करो तो बेहतर है। तुम कुछ नहीं जानते वो कितनी बड़ी झूठी है। इसने क्या किया है तुम जान जाओ तो? सब जानता बाबा, अब से नहीं 1 साल से। आदल ने इसकी इन पर बम फोड़ा था। पास खड़ी सबा ने भी हैरानी से इसकी तरफ देखा। वह अस्पताल में थी, अपनी बच्ची को जन्म देते वो किस कदर तकलीफ काट रही थी मैंने देखा था, लेकिन वह फिर भी नहीं बदली। वो कहाँ रह रही थी सब जानता था। इसे अपनाना होता तो कब का अपना चुका होता बाबा, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी कि इसे अपनाता। मैंने इस दिन तलाक के पेपर्स बनवा लिए थे लेकिन साइन ना कर सका, पर सबा से निकाह से पहले साइन कर दिए थे। एक नज़र सबा पर डाली जो हैरसी से सुन रही थी। मैंने सबा को पूरे दिल से अपनाया है बाबा, और आपका बेटा मजबूत असाब का मालिक है। कोई भी निम्रा जैसी लड़की आपके बेटे को तोड़ नहीं सकती। आदल के पुर यकीन लहजे में सलीम साहब ने मुस्कुराते हुए बेटे को सीने से लगाया। इन्हें अपने बेटे के बाकिरदार और मजबूत होने पर फख्र था। सबा की आंखों में आंसू बहने लगे। सलीम साहब ने इसे भी अपने सीने से लगाया। बस बेटा रोना नहीं, जो गुजर गया इससे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ाओ। सलीम साहब के नंबर पर कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करने की गर्ज से बाहर निकल गए। ए मीठी यहाँ आओ। आदल ने एक सिंगल सोफे पर बड़ा जवान होते हाथ की इशारे से सबा को अपने पास बुलाया। वो खफी से इसे देखती इसके पास जा खड़ी हुई जिसने 1 साल तक इससे सब कुछ छुपाया था। आदल ने इसे खींच के अपने लैपटॉप में अपने लैप पे बिठाया। मेरी जिन जान नाराज है, इसको
تھائی سے پکڑتے اپنی طرف موڑتے اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ گمگیر لہجے میں بولا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، اس میں کچھ خاص بات تھی نہیں جو بتاتا، اور ویسے بھی اتنے لوگوں کو میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، میں ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں۔ اس کے گالوں پر اپنے لبوں کی ٹریسنگ کرتا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ عادل بے باک طبیعت سے ایک ہی رات میں اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی۔ اچھا، میری جن جان کو روم میں جانا ہے، چلو پھر۔ عادل نے فوراً سے اسے گود میں بھرا تو صفا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ اس قدر رومانٹک ہوگا صبا کو کیا پتا تھا۔ کھڑا ہونے کی جگہ دی، بیٹھنے کی بجائے وہ تو پورا کا پورا لیٹ ہی گیا۔ عادل اسے کمرے میں لاتے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی جن جان کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔